قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی لمبی چوڑی تمہید نہیں باندھنا چاہتے بلکہ ڈائریکٹ گفتگو شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے قرب کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو، وسیلہ تلاش کرو۔ اللہ نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ ڈھونڈو۔ اب وسیلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کو پکڑو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے، ایسا ذریعہ تلاش کرو، ایسا سبب تلاش کرو جو تمہیں اللہ تک پہنچا دے۔ اب قرآن نے تو فرمایا کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے تمہارے پاس چاہیے وسیلہ۔ اب وسیلے پر سب متفق ہے، پوری دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کہتے ہیں کہ وسیلہ چاہیے، لیکن بعد میں دو گروپ بن جاتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نیکیاں یہ وسیلہ ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو، یعنی اس کو وسیلہ بناؤ، عمل کو وسیلہ بناؤ۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے جو صرف ظاہری بات کو سمجھتا اور ظاہری باتیں کرتا، لیکن دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جس میں ہم لوگ ہیں اہل سنت۔ ہمارا طبقہ یہ کہتا ہے کہ عمل بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اور شخصیت، ذات بھی کسی کی وسیلہ ہو سکتی ہے۔ دو گروپ بن گئے۔ ایک گروپ کہتا ہے صرف عمل وسیلہ ہے، روزہ، نماز یہ سب چیزیں وسیلہ ہے، دعا، قرآن کی تلاوت۔ اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں اہل سنت، میں کوئی آپ پہ نہیں تھوپتا، آپ کو دونوں بات بیان کر رہا ہوں، جس کی پسند آئے آپ اسی کو اٹھا لے جائیں، لیکن بات غور سے سننا، بات کوئی لڑائی جھگڑے کی نہیں۔ ہم صوفیہ کے مسلک والے لوگ ہیں۔ غریب نواز نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، کبھی کسی کے منہ پہ تماچا بھی نہیں مارا، اور 90 لاکھ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یعنی ہمارے یہاں لڑائی جھگڑے والا کوئی میٹر ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ایک سوداگر جب سودا لے کر کے بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ میں دکان لگا چکا ہوں، اس میں سے تمہیں جو پسند آئے وہ لے جاؤ، نہ پسند آئے تو گھر جاؤ۔ یہ ایک سوداگر کی فکر ہوتی ہے۔ تو ہم بھی ایسے ہی لوگ ہیں کہ اگر آپ کو سودا پسند آتا ہے تو لے جائیں، ورنہ نہیں تو پھر انسان تو گھر جانے ہی کے لیے آیا ہے۔ تو دو گروپ ہو گئے انسانوں میں۔ کیا ایک کہتا ہے کہ صرف عمل وسیلہ ہے، اور ایک دوسرا گروپ کیا کہتا ہے جو اہل سنت کا ہے۔ پوری دنیا میں ہر زمانے میں اس کی تعداد بڑی رہی ہے، سواد اعظم کہلایا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ عمل بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اور شخصیت بھی، ذات بھی وسیلہ ہو سکتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر، جیسے ایک بندہ ہے اس کا نام عبداللہ ہے، تو عبداللہ کا جو عمل ہے وہ بھی وسیلہ ہو سکتا ہے اور خود عبداللہ بھی وسیلہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ کیوں ہم ایسا کہتے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے، اس لیے کہ لوگ وہ جو دوسرا گروپ ہے کہتا ہے کہ عبداللہ کا عمل وسیلہ ہے، عبداللہ وسیلہ نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر عبداللہ ہی نہ ہو تو پھر عبداللہ کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عمل کے لیے بھی تو عبداللہ وسیلہ ہے۔ اس عمل کے ظہور کے لیے جیسے روزہ وسیلہ ہے، تو روزے کے لیے عبداللہ کا ہونا بھی تو ضروری ہے۔ جب عبداللہ ہی نہیں ہوگا تو روزہ کیسے ہوگا؟ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ایک چیز ایسی ہے کہ روزہ ہم نے رکھا، یعنی میں نے رکھا، اور کسی نے رکھا، اور کسی نے رکھا، اور کسی نے رکھا، قبول ہے، اس کی گارنٹی کیا ہے؟ بتائیں اس کی گارنٹی کیا ہے کہ قبول ہے؟ لیکن کچھ شخصیات ایسی ہے کہ جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضور مجاہد ملت، ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ فنافل غوث تھے، غوثیت ماب میں ڈوبے ہوئے تھے، ان کی محبت میں ڈوبے
हुए थे। अल्लाह अकबर। एक बहुत बड़े दूसरी जमात के मुफ्ती साहब से उनका मुनाजरा हुआ, तो उन्होंने कहा तुम लोग फला जगह नमाज नहीं पढ़ते। तो हज़रत मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया आप हमसे नमाज का मुतालबा यूं भी करते हैं, जबकि आप हम लोगों को मुशरिक भी कहते हैं, फिर नमाज का मुतालबा भी करते हैं। आप हमें मुशरिक कहते हो, फिर हमसे कहते हो कि नमाज भी पढ़ो, तो मुशरिक पर नमाज फर्ज कैसे है? तो जब वो लाजवाब हो गए मुफ्ती साहब, तो कहा हाँ हम आपको इसलिए मुशरिक कहते हैं कि तुम लोग वसीला मानते हो, नबी को वसीला बनाते हो, सहाबा को वसीला बनाते हो, अहले बैत को वसीला बनाते हो, तो तुम लोग मुशरिक ना हो गए। तो हजरत मुजाहिद मिल्लत ने उस मुफ्ती साहब से फरमाया मुफ्ती साहब ये बताओ रसूलुल्लाह को वसीला बनाकर हम लोग मुशरिक हो गए और अहले बैत को वसीला बना के हम लोग मुशरिक हो गए, गौसपाक को वसीला बना के हम मुशरिक हो गए। एक सवाल का जवाब दो मुफ्ती साहब, तो आपके नजदीक वसीला क्या है? तो उन्होंने कहा नमाज रोजा हज ज़कात अमल हमारे लिए वसीला है, शख्सियत वसीला नहीं। तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया मुफ्ती साहब देखो जोहर की नमाज आपने भी पढ़ी है, जोहर की नमाज मैंने भी पढ़ी है, हम दोनों ने अमल किया कि नहीं किया? कहा बिल्कुल किया। अब कहा मुफ्ती साहब बताओ वसीला क्या है? कहा नमाज वसीला है। तो कहा मुफ्ती साहब आपने इतने एहतिमाम से नमाज जोहर पढ़ी, हमने भी पढ़ ली, क्या इसकी गारंटी है कि अल्लाह ने आपकी जोहर कबूल की या मेरी जोहर कबूल की? बोलो इसकी गारंटी है। तो वो बाहर वाले जो दूसरे मुफ्ती साहब थे उन्होंने कहा नहीं नहीं अमल की तो कोई गारंटी नहीं है कि कबूल करिए कि नहीं कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह है वो तो बड़ों बड़ों का अमल रद्द कर देता है, वो तो किसी का भी अमल रद्द कर देता है। अरे आदम अलैहिस्सलाम 200 साल तक रोते रहे लेकिन अल्लाह ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, वो बेनियाज है, वो जिसका चाहे कबूल करे, जिसके ऊपर चाहे जवाब दे, जिसके ऊपर चाहे जवाब न दे, किसी का चाहे कबूल करे, किसी का चाहे रद्द कर दे। तो मेरी क्या औकात है, मेरी नमाज कबूल हुई या नहीं हुई इसकी कोई गारंटी नहीं। तो मुजाहिद मिल्लत ने मुस्कुरा के कहा पक्की बात है, आपका अमल वसीला है और आप जिस अमल के वसीले के बारे में बात करते हैं तो उसके बारे में आप यही कहते हैं कि कबूल हुई या नहीं हुई कोई गारंटी नहीं, मतलब ये अमल क्या है, डाउटफुल है। कहा मुफ्ती साहब अब दूसरी बात बताओ, रसूलुल्लाह कबूल है कि डाउटफुल है, नबी कबूल है कि डाउटफुल है, अहले बैत कबूल है कि डाउटफुल है, सहाबा कबूल है कि डाउटफुल है, औलिया कबूल है कि डाउटफुल है? तो उसने कहा नहीं नहीं अल्लाह अकबर रसूलुल्लाह बिल्कुल कबूल है। तो मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया तुम्हारे और हमारे वसीले में यही फर्क है, जिसको तुम वसीला बनाते हो डाउटफुल है तुम्हारे नजदीक भी, और जिनको हम वसीला बनाते हैं उसकी कबूलियत में कोई शक ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजलक आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अब बात समझ में आई, जिसको वो वसीला बनाते हैं उनके नजदीक तो वो भी डाउटफुल है, और जिनको हम बनाते हैं वो वसीला इतना मजबूत है कि मुसलमान और काफिर सब के सब उस वसीले को मकबूल जानते हैं। इसलिए कि नबी मकबूल न होंगे तो फिर मकबूल कौन होगा? अल्लाह अकबर। मेरे नबी की शान तो ये है कि अल्लाह फरमाता है महबूब अगर तुम्हें पैदा करना ना होता तो मैं कायनात को पैदा न करता, तुम्हें पैदा करना ना होता तो नबियों को नबूवत न दी जाती, तुम्हें पैदा करना ना होता जमीन और आसमान पैदा न किए जाते, तुम्हें पैदा करना ना होता। अल्लाह अकबर। हम अपनी रुबूबियत का इजहार न करते, गोया के कायनात क्यों बनी है? तो आवाज आती है इमाम अहले सुन्नत की, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीन और मक्का तुम्हारे लिए, चुनी न चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में सबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए रहा तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, जिना में चमन, चमन में समन, समन में सबन, सबन में दुल्हन, सजाए में है प्यासे में रन, ये हम लोग तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिल हो भले, विवाह के करे सना में खुले, हमारी ज़बान तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह। अब जिसका वसीला जितना मजबूत होगा उस पर अल्लाह की उतनी खुसूसी करम की नजर होगी। अब अपना वसीला कौन कौन, अब नाम सुनते जाए।
सब नबियों का इमाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हमारा वसीला, सिद्दीक अकबर हमारा वसीला, फारूक आजम हमारा वसीला, उस्मान गनी हमारा वसीला, मौला अली हमारा वसीला, सैयदा फातिमा हमारा वसीला, इमाम हसन हमारा वसीला, इमाम हुसैन करबला वाले हमारा वसीला, इमाम आजम हमारा वसीला, गौसे आजम हमारा वसीला, महबूब इलाही हमारा वसीला। अगर एक एक हस्ती पे बात की जाए तो घंटों लग जाए, लेकिन आज जिस वसीले पर गुफ्तगू होनी है वो जात है सरकार गौसे आजम कुतुबुल अक़ताब शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात। आपको पता है मुसलमानों, गौसे आजम की क्या शान है, गौसे आजम की क्या अजमत है। लोग कहते हैं कि ये लोग कहानी किस्से की बात करते हैं, लेकिन याद रखें हम तो कहते हैं जिन्हें मानना है वो माने, जिन्हें नहीं मानना है नसीब नसीब की बात है। कोई अंग्रेजों की लिखी हुई बात भी मान लेता है और किसी के नसीब में अल्लाह वालों की बातें मानना लिखी हुई है। बात बात की बात है, मामलात मामलात की बात है, तकदीर तकदीर की बात है। गौस पाक की शान क्या है मैं आपको बताऊं, किताबों में जो लिखी है। गौसे आजम खुद फरमाते, शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करने लगता है उस पर मेरा साया ऐसे होता है जैसे आसमान का साया जमीन पर। अगर तुम्हें ठोकर लगकर तुम गिरने वाले होते हैं तो मैं तुम्हें ठोकर लगने के बाद गिरने से बचा लिया करता। गौस पाक फरमाते मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है। गौसे आजम फरमाते मेरा अल्लाह मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि वो मुझे कसम दे के कहता है, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खा ले। जब तक वो मुझे कसम नहीं देता मैं खाना नहीं खाता, जब तक वो मुझे कसम नहीं देता मैं पानी नहीं पीता। मेरे इमाम फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब दुआ किया करो, गौस पाक खुद फरमाते बहजतुल असरार आपकी जिंदगी की सबसे मुस्तनद किताब है बहजतुल असरार, उसमें ये बात लिखी है। गौसे पाक फरमाते हैं कि जब तुम दुआ करो तो मेरे वसीले से दुआ किया करो, कि जब तुम मेरे वसीले से दुआ करते हो तो मैं जमानत देता हूँ। गौस पाक कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ, जमानत देता हूँ, जो दुआ मेरे वसीले से की जाती है अल्लाह ताला उसको जरूर कबूल फरमाता है। अगर दुआ में तासीर चाहते हो तो गौस पाक का वसीला लिया करो। आइए एक वाक्य की तरफ इशारा करते हैं, बहुत ध्यान से मेरे जवान, जो जानते सो जानते हैं, जो नहीं जानते वो समझे कि गौस पाक क्या है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी क्या है। इतना समझ लो मेरे भाई कि नबियों की कायनात में मेरे नबी जैसा कोई नबी नहीं, और वलियों की कायनात में गौसे आजम जैसा कोई वली नहीं, गौस पाक जैसा कोई वली नहीं। उनकी शान सिर्फ सुन ले, फिर बात आगे चलेगी असल उन्वान की तरफ। गौस पाक क्या है? एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में कई लोग असल में आते जाते रहते थे। गौस पाक से मिलने के लिए वली लोग आते थे, औलिया आते थे, अख्ताब और अब्दाल आते थे। सरकार गौसे आजम की खानका थी, अभी भी है। गौस पाक की खानका पहले भी थी, अभी भी है। 900 साल हो रहे उनकी खानकाह को, सरकार गौसियत माप की खानकाह को। हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु उनकी खानकाह थी। बड़े इल्म वाले थे, चारों मसलक पर फतवा देते थे, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, चारों हक है, चारों मसलक पर आप फतवा देते थे। बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े इबादत गुजार थे। इबादत इतनी करते थे कि 40 साल तक आपका मामूल रहा कि आप इशा में वुजू करते थे तो उसी इशा के वुजू से आप फजर की नमाज पढ़ते थे। ये मामूल आपका 40 साल तक के रहा। हर रात पूरी रात इबादत किया करते थे। अल्लाह अकबर। आपका हाल ये था कि तकरीबन 35 साल इस तरह आपकी जिंदगी के कम व बेश गुजरे, कम ज्यादा भी उसकी तादाद बताई जाती है कि आपने दरख्त की पत्तियों पर सहरी की और दरख्त की पत्तियों पर इफ्तार फरमाया। हरी घास खाने की वजह से आपकी गर्दन हरी हो गई थी। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला ने इस तरह भी मुजाहिदात किए। फरमाते हैं अल्लाह की इबादत करने में मैंने इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत उठाई कि अगर वो पहाड़ों पर डाल दिए जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए, पहाड़ भी उस तकलीफ को बर्दाश्त न कर सके, तो फिर अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को मर्तबे देता है। एक बात अच्छी तरह याद रखना, आज मुसलमानों की फिक्र हो गई है कि
कोई मेहनत नहीं करना और अल्लाह ने हमें मर्तबे देना। अल्लाह की एक भी मैंने नहीं सुननी और अल्लाह ने मेरी हर बात सुननी है। ये बात याद रखिए। अल्लाह अकबर। मर्तबे ऐसे गैरों को नहीं मिलते, मर्तबे ऐसे वैसों को नहीं मिलते। जो अल्लाह के लिए कुर्बानियां देते हैं अल्लाह ताला उनको मर्तबा अता करता है। कितना अफसोस है, मुसलमान फजर की नमाज में गैर हाजिर, मस्जिदों को वीरान कर चुका है, नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं, हराम खाए मुसलमान, गंदी फिल्में देखे मुसलमान, औरतों पर पाप की नजर डाले मुसलमान, सर पे टोपी पहनने में भी शर्म आए मुसलमानों को। अल्लाह अकबर। जितना एक गरीब के घर में किराने का पैसा खर्च होता है उससे ज्यादा इंटरनेट पे खर्चा कर दे मुसलमान। दाढ़ियां मुंडाकर कटरों में फेंके रसूलुल्लाह की सुन्नत को मुसलमान। और फिर मुसलमान ये सोचता है इधर मैं हाथ उठाऊंगा और उधर अल्लाह मेरी बात कबूल कर लेगा। तो मैं पूछता हूँ, लोग हमारे पास आकर बड़ी सादगी से कहते हैं सैयद साहब बरसों से अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कबूल नहीं होती, तो हम बड़ी मोहब्बत से कंधे पे हाथ रख के कहते हैं मेरे अजीज तू अल्लाह की कितनी मानता है जो अल्लाह तेरी मानेगा। बात तो ये है ना, तू अल्लाह की मानना शुरू कर, अल्लाह तेरी मानने लगेगा। आप जानते हैं गौसे पाक फरमाते हैं अल्लाह मेरी बहुत सुनता है, बहुत कबूल करता है। लोगों ने कहा वो क्यों? फरमाया जब से मैं उसकी मानने लगा हूँ वो मेरी मानने लगा है। वो जो कहता है मैं वो करता हूँ, फिर मैं जो कहता हूँ वो करता है। कैसे? 12 बरस की डूबी हुई कश्ती को कह दिया अल्लाह तिरा दे तो अल्लाह ने तिरा दिया। अल्लाह अकबर। 12 बरस की कश्ती। मुसलमानों सोचो तो सही न जरा, गौर तो करो न जरा, एक कश्ती को डूबे हुए 12 साल हो गए। अल्लाह अकबर। और वो कश्ती को डूबे हुए 12 साल। मशहूर करामत है सरकार गौसे पाक की, मैं वो जो है वो वाकया बयान करना नहीं चाहता, लेकिन आप सोचे एक कश्ती को डूबे हुए 12 साल हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर वो कश्ती के अंदर जो इंसान होंगे उन इंसानों को जिन मछलियों ने खाया होगा उन मछलियों को मछलियों ने या इंसानों ने खा लिया होगा और खाकर लोगों ने हजम कर लिया होगा, गलाजत कर दी होगी। 12 साल का अरसा क्या होता है? एक बच्चा पैदा हो तो 12 साल के बाद वो बालिग हो जाता है, ये अरसा है 12 साल का। लेकिन सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दुआ की। देखो हम लोग जो करामत मानते हैं, आजकल के नई उम्र के लड़के क्या कहते हैं, हजरत ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा तुम अल्लाह को नहीं जानते। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत पत्थरों से फूल पैदा करता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत पानी बरसाता है। मैं आपको ये बताऊं, देखो आज तो करामतों को समझना आसान हो गया। पहले हम लोग कहते थे तकरीर के अंदर कि गौसे पाक बगदाद में बैठे हुए पूरी दुनिया को देख रहे हैं, तो कुछ नौजवान छोकरे कहते थे ये तुम लोग फेकम पाक करते हो, मौलवी लोग बेवकूफ बनाते हो लोगों को, कोई किसी शहर में बैठ के किसी चीज को देख सकता है। अब हम लोगों से कहते हैं अब देखो तुम अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया को टीवी पे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो तुम देख सकते हो, गौस पाक नहीं देख सकते? और कहा हम टीवी पे देख रहे हैं। हमने पूछा टीवी पे कैसे देख रहे हो? और कहा ये सिटी लाइट का कमाल है। मैं कहता हूँ अगर साइंस मेहनत करके सिटी लाइट को जोड़ दे तुमसे और तुमको जोड़ दे सिटी लाइट से, तो तुम घर में बैठ के पूरी दुनिया देख सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तुम इतना भी ईमान न लाए जितना सैटेलाइट पर ईमान लाए। अरे सैटेलाइट अपने कमाल से जब दुनिया दिखा सकता है तो क्या मेरा अल्लाह अपनी कुदरत से अब्दुल कादिर जिलानी को दुनिया नहीं दिखा सकता? हैरत की बात यह है, कितने हैरत की बात। गौसे पाक घर में बैठकर किसी की आवाज सुन रहे, और ये नहीं हो सकता मुनाजरे का चैलेंज तुमने शिर्क किया। हमने कहा अब तो 15वीं सदी में समझो, तुम घर में बैठ करके मक्के से अपने बाप की आवाज मोबाइल पे सुन रहे हो। तो मैं पूछना चाहता हूँ सैटेलाइट अगर तुम्हारे बाप की आवाज तुम्हें आज की सदी में सुना सकता है, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल कादिर जिलानी को उनके घर में लोगों की आवाज नहीं सुनवा सकता? अल्लाह की कुदरत पर उतना भी ईमान नहीं लाए जितना तुम साइंस में ईमान लाए। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह की तुमने वो कदर नहीं की। हर बात में लोगों ने फतवे का लोगों को शौक कितना शौक है। शिर्क कुफ्र। मेरे भाई हम ये कहते हैं, तवज्जो करो, अल्लाह की इज़्ज़त के बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। ये जितने वलियों की करामत है वो बेइज़्निल्लाह है, अल्लाह की इजाजत से, उसकी इज़्न से। अल्लाह न चाहे किसी की कोई करामत जाहिर नहीं हो सकती। सबकी करामतें अल्लाह के फज़ल से है, मोजज़ात अल्लाह के इज़्न से है।
یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے ہے.